Hello guys, welcome to Horticulture Classroom. So today we'll be discussing about gene silencing. So gene silencing is made up of two words. First is gene and the second is silencing. So in simple words we can say silencing the action of a gene is referred to as gene silencing. So what is a gene? A gene is a fundamental physical and functional unit of heredity. And gene silencing is a molecular mechanism that knocks down the gene expression in plants, both in nature and in response to external stimuli. It was first observed in transgenic petunia that was transformed by chalcone synthase, that is CHSA gene. The history date backs to 1930 when Muller saw position effect variegation in Drosophila. Now, this is the central dogma of biology. So, here this is explained what is replication, what is transcription, and what is translation. तो जब डीएनए से डीएनए ही बनता है तो उसे कहते हैं रेप्लिकेट. रेप्लिकेट होना मतलब सेम चीज बनना. जब डीएनए से आरएनए बनता है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन. नाउ हाउ जीन साइलेंसिंग वर्क्स. So first of all, it is accomplished by binding a specific strand of RNA to an existing mRNA strand. And the messenger RNA creates a copy of that DNA strand. And by binding the RNA to the messenger RNA, mRNA is prevented from replicating that portion of the particular DNA. And the last step is the specific genes can be targeted and prevented from replicating into the new strands. So, in gene silencing, instead of directly editing the DNA or inhibiting the transcription process, the gene silencing works on the principle that it intervenes the expression of the gene prior to translation. So, types of gene silencing. Gene silencing is of two types: transcriptional gene silencing and post transcriptional gene silencing. Transcriptional gene silencing consists of genomic imprinting, paramutation, position effect, RNA directed DNA methylation, transposon silencing, and transgene silencing. Post transcriptional gene silencing consists of antisense RNA technology, RNAi technology that consists of miRNA, that is microRNA, shRNA, that is short hairpin RNA, and siRNA, that stands for short interference RNA. Now, there's a difference between transcriptional and post transcriptional gene silencing. According to S. Grant 1999, in transcriptional gene silencing, the promoter used is silent, and in post transcriptional gene silencing, the promoter is active. Both of the gene silencing have the same purpose, that is viral immunity. And in transcriptional gene silencing, the genes are hypermethylated in the promoter region, whereas in the other one, the genes are hypermethylated in the coding region. Now, first is transcriptional gene silencing. जब जीन की साइलेंसिंग ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे करते हैं तो दैट इज रिफर्ड टू एज ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग. एंड ये होता कैसे है, ये रिजल्ट है जब हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होता है. नाउ इसके सब टाइप्स होते हैं जीनोमिक इनप्रिंटिंग. तो जीनोमिक इनप्रिंटिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें सेम जीन के जो अलील्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अलग तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट ऑफ ओरिजिन. So here it is written, genomic imprinting is an epigenetic phenomenon in which alleles of the same gene express divergently depending upon the parent of origin. और ये इनहेरिटेंट प्रोसेस होता है जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट है. और डोमिनेंस के हिसाब से इम्प्रिंटेड जीन्स दो टाइप की होती हैं: मेटर्नली एक्सप्रेस्ड इम्प्रिंटेड जीन्स एंड पेटर्नली एक्सप्रेस्ड इम्प्रिंटेड जीन्स. मेटर्नली एक्सप्रेस इम्प्रिंटेड जीन्स क्या होती हैं, जो कि मदर के साइड से होती हैं, एंड पेटर्नली इज फ्रॉम फादर्स साइड. In plants, all dominant imprinted genes are expressed only in the endosperm of flowering plants. Now, next is paramutation. तो ये भी एक एपिजेनेटिक फिनोमिनन ही होता है जिसमें एक अलील में जो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, जब ट्रांस इंटरेक्शन होता है दो अलील्स का जो कि सेम लोकस पे हो या फिर डिफरेंट लोकस पे.
जिसमें कि डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है। तो ये क्या है, ये एक एपिजेनेटिक प्रोसेस है जिसमें कि हेरिटेबल चेंजेस होते हैं किसी एक अलील में। किस वजह से? जब ट्रांस इंटरेक्शन होता है दो अलील्स का, जो कि सेम लोकस पे हो सकते हैं या फिर डिफरेंट लोकस पे। ये टर्म सबसे पहली बार दिया था अलेक्जेंडर ब्रिंक ने। जब जिस अलील का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है उस अलील को बोलेंगे पैराम्यूटेबल, और जिस अलील की वजह से हो रहा है दैट इज नोन एज पैराम्यूटाजेनिक। और अलील होता क्या है? अलील जो होता है अल्टरनेट फॉर्म होता है जीन का। नो नेक्स्ट इज पोजीशन इफेक्ट। तो पोजीशन इफेक्ट, ये इफेक्ट होता है, कोई भी ऐसा इफेक्ट जो जीन के एक्सप्रेशन में हो जाता है जब उसकी क्रोमोसोम से लोकेशन चेंज की जाती है। किस वजह से? ट्रांसलोकेशन की वजह से। अब नेक्स्ट इज आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन। ये भी एपिजेनेटिक जीन साइलेंसिंग फिनोमिनन है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज रिस्पॉन्सिबल होता है मिथाइलेशन के लिए डीएनए के, जो कि स्विच ऑन या ऑफ की तरह एक्ट करता है किसी भी जीन एक्सप्रेशन के लिए। अब इसी का एक एग्जाम्पल है रेगुलेटिंग एसिंक्रोनस फ्लोरिंग इन पाइनएप्पल बाय द यूज ऑफ आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन। तो सबसे पहले एसिंक्रोनस फ्लावरिंग होती क्या है? A fraction of the crop ranging from 5 to 30% and reaching up to 70% under certain condition manage to flower ahead of schedule, and this phenomena is known as natural flowering or environmental induction. तो ये जो फिनोमिना है ये अनडिजायरेबल होता है पाइनएप्पल के लिए, क्योंकि हार्वेस्ट की जो शेड्यूलिंग होती है उसमें इंटरप्शन होता है, मार्केट सप्लाई हिंडर हो जाती है और इंक्रीजिंग हार्वेस्ट कॉस्ट, जिससे कि हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? एसिंक्रोनस फ्लावरिंग के लिए, जो कि है एसीसी सिंथेज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग नेचुरल फ्लावरिंग इन एप्पल। तो एसीसी जीन जो है वो ट्रिगर करती है नेचुरल फ्लावरिंग को, और इस जीन को हमने साइलेंट करके दो ट्रांसजेनिक पाइनएप्पल लाइंस प्रोड्यूस की थी। नाउ नेक्स्ट ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग। ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग में को हम इन सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं, जो मतलब जंपिंग जीन्स बोल सकते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अब आता है ट्रांसजीन साइलेंसिंग। तो ट्रांसजीन होता क्या है? ट्रांसजीन एक ऐसी जीन होती है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है नेचुरली या फिर किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से एक ऑर्गेनिज्म से अंदर से, और इस इंट्रोडक्शन को ट्रांसजीन के बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस। इसी से हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी बनाते हैं। अब आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो ये सबसे पहली बार रिपोर्ट हुआ था 1990s में। ये एक ऐसा फिनोमिनन होता है जो कि जनरली एक्सीडेंटली पता चला था पिटूनिया फ्लावर्स में, जहाँ पे चालकोन सिंथेज जो CSHA जीन थी उससे वेरीगेटेड फ्लावर्स आए थे इंस्टेड ऑफ डीप पर्पल कलर फ्लावर। इसका सब टाइप है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग रिफर टू द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ जीन्स, जो कि स्मॉल सीक्वेंस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को यूज करता है जिन्हें हम एंटीसेंस बोलता है, दैट थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग सप्रेस ट्रांसलेशन और डायरेक्ट डिग्रेडेशन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट mRNAs। बहुत कुछ कुछ फ्रूट क्रॉप जैसे कि स्ट्रॉबेरी और एप्पल में हम इसे यूज़ करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को बढ़ाने के लिए, फर्मनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे FAPG1 जीन जो है स्ट्रॉबेरी में रिड्यूस करता है फ्रूट की सॉफ्टनिंग को और एक्सटेंड करता है पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को। अब एक एग्जांपल है इसका, रिडक्शन ऑफ पॉलीगैलेक्ट्रोनेस एक्टिविटी इन टमाटो फ्रूट बाय एंटीसेंस आरएनए। तो जो ये पॉलीगैलेक्ट्रोनेस एंजाइम है ये सिर्फ राइपनिंग के टाइम पे एक्सप्रेस किया जाता है टमाटो में, और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है राइपनिंग के टाइम पे, जिससे कि सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है और फ्रूट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है टमाटो का। तो टमाटो प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म किया गया था आरएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, एंटीसेंस आरएनए को यूज़ करके, फ्रॉम अ जीन कंस्ट्रक्ट जिसमें कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस था, और ये एग्रो बैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन था। नाउ इन द नेक्स्ट इज नॉनसेंस मीडिएटेड डीके। इंपॉर्टेंट आरएनए सर्विलेंस पाथवे है जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चलता है।
इसके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। फर्स्ट है कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है एंड द सेकेंड इज प्रोटीन के एक्सप्रेशन को, और ये रीमॉडल करता है जीन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोटीन्स by targeting premature terminating codons. Now, next is RNA interference, or in short known as RNAi. This is also a gene silencing phenomenon that involves sequence specific gene regulation induced by a double stranded RNA, that is dsRNA, resulting in inhibition of translation or transcription. Now, here is the difference explained between miRNA and srRNA. So, origin miRNA, known as microRNA, originate from distinct genomic loci and induced by their own genes, whereas short interfering RNAs are originated from encoded by transposon viruses and heterochromatin. Their biogenesis or the nature of precursor. They are single RNA molecules that include an imperfect stem loop secondary structure. And in siRNA, there are long biomolecular RNA duplexes or external hairpins. Evolutionary conservation, miRNA. They are nearly always conserved in related organism, whereas siRNA are rarely conserved in related organism. miRNA regulate different genes, whereas short interfering RNA mediate the silencing of same genes from which they originate. Now, there are some examples of gene silencing in horticulture. तो जीन साइलेंसिंग को हमने बहुत तरीके से यूज़ किया गया है, जैसे कि फ्रूट इम्प्रूवमेंट के लिए, बायोटिक्स टेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, ए बायोटिक्स टेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट, मेल स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी, फ्लावर कलर मॉडिफिकेशन, वुड क्वालिटी, फूड क्वालिटी एंड अदर ट्रेड्स. सो जीएस फॉर फ्रूट इम्प्रूवमेंट. न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए फर्स्ट पॉइंट है, टमाटो में कैरोटीनॉइड और फ्लेवोनॉइड लेवल्स को बढ़ाया इम्प्रूव किया गया था आरएनएआई मीडिएटेड सप्रेशन से ऑफ डीईटी1 एक्सप्रेशन. कॉफ़ी में आरएनए इंटरफेरेस टेक्नोलॉजी ने ऐसी वैरायटीज़ बनाई कॉफ़ी की जिसमें कि लो या फिर बहुत कम कैफीन कंटेंट था. रेपसीड दैट इज़ ब्रेसिका नेपिस में इंक्रीज़ किया गया था कैरोटीनॉइड कंटेंट. एप्पल में फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाई थी शेल्फ लाइफ बढ़ा के. सिट्रस में भी रेगुलेट किया था प्यूटेटिव थर्मोस्टेबल पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज जीन्स को. Now, enhanced shelf life. This is discussed previously in tomato. And the second is in tomato. तो एक recent study ने बताया था कि CNR कलरलेस नेवर लाइफ जो है वो रेगुलेट होता है एपिटेला से, जीन से, जो टारगेट है MIR172 का, जो कि रेगुलेट करता है फ्रूट राइपनिंग को और नेगेटिवली रेगुलेट करता है इथाइलिन के सिंथेसिस को. जीन साइलेंसिंग फॉर सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट. कई सारी स्टडीज से पता चला है कि सीडलेसनेस इंक्रीज कर सकती है टेक्सचर को एज वेल एज शेल्फ लाइफ को फ्रूट्स की. फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ वाटरमेलन एंड एग प्लांट, वाटरमेलन में ये देखा गया था कि सीड्स फ्रूट को डिटोरिएट कर सकते हैं. दस अगर हम सीड्स को रिप्लेस कर दें एडिबल फ्रूट टिश्यू से तो वो डिज़ायरेबल ट्रेट होगा और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी इसकी मार्केट में और प्रोसेसिंग में भी, एंड इनफैक्ट इन ब्रीडिंग कंपनीज. And in addition, it has been shown that seed development in fruit restricts the yield in cucumber and tomato. De Jong et al. 2009 indicated that SIARF7 gene acts as a modifier of both auxin and gibberellin responses during tomato fruit set and development. तो जब हमने रिड्यूस किया SIARF7 को ट्रांसक्रिप्ट लेवल पे किसकी हेल्प से, RNAi इंटरफेरेंस की हेल्प से, तो ये रिलीज कर सकता है रिप्रेशन को ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड के सिग्नलिक पाथवेज को, जिससे कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की ग्रोथ होगी टमाटो में. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो. तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू.